Ignited Minds Tutorials has just released a comprehensive video for Class 8 CBSE students to revise all the topics in science for the upcoming Term 2 examinations. This video covers all the essential concepts and theories in a simple and understandable manner, making it easier for students to grasp and retain the information. The video includes explanations of important topics such as cell structure and functions, chemical reactions, force and pressure, and more. The tutorial also provides helpful tips and tricks to remember key points and formulas. By watching this video, students can enhance their knowledge and confidence in science and prepare effectively for the upcoming exams. With the Term 2 examinations fast approaching, this resource can be a valuable tool for students to review and reinforce their understanding of the subject. Ignited Minds Tutorials aims to empower students with the necessary knowledge and skills to excel in their exams and beyond. This video is an excellent resource for Class 8 CBSE students to revise science and perform well in their upcoming assessments. ओके, लाइट में देखिए क्वेश्चंस हैं जो हम यहाँ पे 2-3 चैप्टर्स का रिवीजन कर रहे हैं एक साथ. ठीक है, लाइट में व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल. सो ऑब्वियसली थिंग्स आर विजिबल ओनली व्हेन लाइट फॉल्स अपॉन देम. लाइट उन पे गिरता है, रिफ्लेक्शन होता है, वो हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम देख पाते हैं. ठीक है, सो व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स एंड एंटर्स अवर आई वी सी द ऑब्जेक्ट. सो लाइट को अपन क्या बोल सकते हैं? लाइट इज अ फिनोमेना. लाइट इज अ फिनोमेना which causes the sensation of sight. Light is a phenomena which causes the sensation of sight. Light एक ऐसा phenomena है जिससे हमको देखने को मिलता है. ठीक है, we are able to see things. Do we see all objects due to reflected light? Almost everything we see around us. हमारे आजू बाजू जो भी दिखता है वो किसके वजह से है? Due to reflected light की वजह से. मून जैसे हम देख पा रहे हैं, मून बेसिकली है क्या? सन का लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है. ठीक है, so receives light and reflect. That's why we see the moon. Define the following terms: illuminated objects and luminous objects. Illuminated objects मतलब जिस पे लाइट गिर रहा है और वो चमक रहा है. ठीक है, the objects which shine in the light of other objects are called illuminated objects. और luminous objects मतलब जो खुद लाइट एमिट कर रहे हैं, जैसे सन हो गया, an electric bulb हो गया. ठीक है, these are known as luminous objects. What happens when light falls on a mirror? Mirror is silvered from one side, so it does not allow light to pass through. It reflects almost whole of the light falling through it. तो समझ लो ये कोई मिरर है और इसका आपने सिल्वर पेंट किया हुआ है. जब इस पे लाइट गिरता है तो पूरा पूरा रिफ्लेक्ट हो जाता है, इधर पास नहीं हो पाता है. ठीक है, सो द एंटायर लाइट इज रिफ्लेक्टेड. ठीक है, ऑलमोस्ट एंटायर लाइट फॉलिंग ऑन अ मिरर, falling on a mirror is reflected. ठीक है, okay. What change in path of light takes place when light falls on a shiny surface? What is this of light? The light reflects back in the same plane. मतलब देखो, जैसे लाइट अगर ऐसे आ रहा होगा ऐसे ही जाएगा, मतलब इसका प्लेन सेम है. ऐसे आके ऐसे नहीं चला जाएगा. ठीक है, इट इज ऑन द सेम प्लेन. प्लेन मतलब कैसा होता है? देखो समझ लो, ये लाइट इधर से आया, इसी प्लेन में ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ. ठीक है, इधर से आके दूसरे प्लेन में नहीं चला जाएगा. सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम प्लेन. ठीक है, तो प्लेन मतलब यहाँ पे PLANE. तो लाइट इज ऑलवेज रिफ्लेक्टेड इन द सेम प्लेन. ठीक है, ओके, दिस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. ओके, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भाई साहब क्या क्या है? हाउ मेनी रिफ्लेक्टेड रेज कैन देयर बी फॉर अ गिवन सिंगल इंसिडेंट रे फॉलिंग ऑन अ प्लेन मिरर? फॉर वन इंसिडेंट रे देयर इज ओनली वन रिफ्लेक्टेड रे. एक इंसिडेंट रे के लिए एक ही रिफ्लेक्टेड रे होगा. ठीक है, तो अगर समझ लो भाई साहब ये इंसिडेंट रे है, ये आपका इंसिडेंट रे है और ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, एक इंसिडेंट रे के लिए हमेशा एक ही रिफ्लेक्टेड रे होगा. लेट्स से दिस इज द नॉर्मल. ये आपका हो गया नॉर्मल. ठीक है, सो ये हो गया आपका भाई साहब इंसिडेंट रे और ये हो गया उसका रिफ्लेक्टेड रे.
ऐसा नहीं है कि एक इंसिडेंट रे के लिए 10 रिफ्लेक्टेड रे होंगे. So it will always be one incident ray, one reflected ray. What is reflected ray? The ray that gets reflected from the surface of a shiny surface is called a reflected. तो ये आपका shiny surface है, मतलब यहाँ पे हमने ग्रे पेंट करके रखा हुआ है. Define mirror, a smooth shining surface which is silvered from one side. तो एक साइड में आपने क्या कर दिया है भाई साहब, सिल्वर कलर कर दिया है, ठीक है, सिल्वर कलर, और ये मिरर बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है. एंड विच रिबाउंड्स द लाइट बैक इन द सेम और इन अ डिफरेंट डायरेक्शन इज कॉल्ड द मिरर. इंसिडेंट रे क्या होता है भाई साहब? द रे ऑफ लाइट विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे. व्हाट आर एंगल्स ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्शन? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ठीक है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, and angle R is equal to angle between reflected ray and normal. ठीक है, clear है. Angle of incidence, the angle between normal and reflected ray is called the angle of reflection. The angle between the normal and the reflected ray is called the angle of incidence. ठीक है, okay. Now, what are the characteristics of an image formed by a plane mirror? क्या क्या characteristics हैं भाई साहब? Characteristics of images formed by plane mirror, it forms an erect image. मतलब आप अगर सीधे खड़े हैं तो प्लेन मिरर क्या सीधा ही बनाएगा, ऐसा उल्टा इमेज नहीं बनाएगा, ठीक है. सो इट ऑलवेज फॉर्म्स एन इरेक्ट, और जिसको अपन अपराइट भी बोल सकते हैं. इट विल ऑलवेज फॉर्म एन अपराइट इमेज. इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट. जितने साइज के आप हैं उतने ही साइज का भाई साहब इमेज फॉर्म होगा, ठीक है. सो इसको अपन बोल सकते हैं क्या, इमेज हाइट. इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट. इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट भाई साहब बराबर होगा. द डिस्टेंस, तो अगर समझ लो ये कोई मिरर है, ठीक है, और इसके सामने भाई साहब आप खड़े हैं इस डिस्टेंस पे, तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ये हो गया आपका भाई साहब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है. एंड दिस इज लेट्स से द इमेज फॉर्म. तो ये हो गया भाई साहब आपका इमेज डिस्टेंस. तो ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है तो सेम होगा. द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर. तो इसको अपन बोलते हैं भाई साहब u, और इसको अपन बोलते हैं स्मॉल v. तो u इज इक्वल टू v, ठीक है. वर्चुअल मतलब क्या होता है भाई साहब, ये हमको दिखता है कि पीछे, इसको अपन स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं. जैसे मोबाइल से जब आप कोई सेल्फी लेते हैं या कैमरा से जब आप कोई फोटो लेते हैं तो आपने इसको स्क्रीन में ऑब्टेन कर लिया है. अगर कोई ऐसा इमेज है जिसको आप स्क्रीन में ऑब्टेन नहीं कर पाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल. लैटरली इन्वर्टेड मतलब क्या होता है, लैटरली इन्वर्टेड मतलब व्हाट इज लैटरल इन्वर्जन? लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट दिखना, ठीक है. आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड दिखेगा और राइट हैंड लेफ्ट हैंड दिखेगा, ठीक है. ये लेफ्ट का राइट प्रतीत होना और राइट का लेफ्ट, इसी को अपन क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्जन, ठीक है. डिफाइन लैटरल इन्वर्जन, फिनोमेना ऑफ चेंजिंग साइड लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट बाय मिरर व्हाइल फॉर्मिंग इमेजेस, दिस इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, ठीक है. इज इट पॉसिबल टू हैव अ रे ऑफ लाइट? क्या ये पॉसिबल है? देखो इतना बड़ा एक लाइट है, इसमें से आप एक रे ऑफ लाइट को निकाल सकते हैं, पॉसिबल नहीं है. लेकिन जब हम डायग्राम बनाते हैं तो फिनोमिनास को समझाने के लिए हम रे ऑफ लाइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. रे ऑफ लाइट इज एन आइडियलाइजेशन. आइडियलाइजेशन मतलब आइडियल एस्पेक्ट में यही हो रहा है, लेकिन इतने सारे रेज ऑफ लाइट हैं कि आपको एक रे ऑफ लाइट निकालना बहुत मुश्किल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है. इन रियलिटी वी हैव नैरो बीम ऑफ लाइट विच इज मेड अप ऑफ सेवरल रेज. फॉर सिंप्लिसिटी वी यूज द टर्म रे फॉर अ नैरो बीम ऑफ लाइट. While standing in front of a plane mirror, if you move your right hand, which hand does your image move? कौन सा हैंड मूव करेगा? लेफ्ट हैंड, ठीक है, लेफ्ट हैंड. और ये क्यों होगा? बिकॉज मिरर्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ लैटरल इन्वर्जन, ठीक है. लैटरल इन्वर्जन की वजह से ये होगा. Here are the capital letters of English alphabet. Encircle the letters which are not show lateral inversion. ऐसे लेटर्स बताओ जो लैटरल इन्वर्जन नहीं दिखाएंगे. अच्छा चलो यहाँ पे आया नहीं है. ए लैटरल इन्वर्जन दिखाएगा? नहीं. बी दिखाएगा? दिखाएगा भाई साहब. बी का इमेज आपको कैसे दिखेगा? ऐसे दिखेगा, है ना. सी लैटरल इन्वर्जन दिखाएगा? दिखाएगा भाई साहब. डी दिखाएगा? ऐसे दिखाएगा भाई साहब, ठीक है. ई दिखाएगा? यस इट विल. एफ दिखाएगा भाई साहब? एफ दिखाएगा. जी, यस जी दिखाएगा. एच नहीं दिखाएगा, एच विल नॉट शो, ठीक है. आई नो, आई विल नॉट शो, ठीक है. जे, जे भाई साहब दिखाएगा लैटरल इन्वर्जन, है ना. के दिखाएगा,
ठीक है। एल ये भी दिखाएगा भाई साहब, एम नो इट विल नॉट शो, ठीक है। एन नहीं दिखाएगा ना भाई साहब, ऐसा उल्टा एन आएगा ना, ठीक है, ऐसे उल्टा एन आएगा, ऐसा उल्टा एन। ओ नो इट विल नॉट शो। पी दिखाएगा भाई साहब, क्यू दिखाएगा भाई साहब, आर दिखाएगा भाई साहब, एस, तो ये सारे भाई साहब दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। ओके, ऑब्जर्व द गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। साइज ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है, साइज ऑफ योर फ्रेंड इज क्या हो जाएगा, इक्वल, तो ये आपके फ्रेंड है भाई साहब, ठीक है, तो जो इनका साइज है, हाइट है, ठीक है, दिस विल बी बेसिकली इक्वल, तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका क्या, इक्वल। डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन योर फ्रेंड एंड द मिरर, ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा। इसी को अपन क्या लिखते हैं, u इज इक्वल टू v, इसको अपन क्या लिखेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। इमेज ऑफ योर फ्रेंड इज, इसको अपन क्या बोलेंगे, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल। वर्चुअल है, इरेक्ट है, इरेक्ट, या हम इसको अपराइट भी बोल सकते हैं, ठीक है, इसको अपराइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या हो जाएगा बोलो, इमेज ऑफ योर फ्रेंड इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरली इन्वर्जन मतलब क्या हो जाएगा भाई साहब, लेफ्ट का राइट दिखना और राइट का लेफ्ट दिखना, दैट इज कॉल्ड लैटरल इन्वर्जन, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके ओके, चलो भाई साहब आते हैं अपन फोर्स एंड प्रेशर पे, ठीक है। व्हाट इज अ फोर्स, अ पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ फोर्स। एक किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप अगर पुश कर रहे हैं या उसको पुल कर रहे हैं तो इसको अपन बोलते हैं फोर्स, ठीक है। हैज फोर्स ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो दो दोनों भी होगा इसका भाई साहब, फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और इसीलिए हम फोर्स को क्या बोलते हैं, वेक्टर, ठीक है। कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड भी होती है और जिसका डायरेक्शन भी होता है उसको अपन बोलते हैं वेक्टर, ठीक है। व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स मस्ट फॉर अ फोर्स टू कम इनटू प्ले, ठीक है। मैंने यहाँ पे मंत्र मारा, तुम पे कोई असर होने वाला है नहीं ना भाई साहब, ठीक है। सो देयर हैज टू बी एटलीस्ट टू ऑब्जेक्ट्स। मैं अगर भाई साहब यहाँ से इसको धक्का दे रहा हूँ, मैं इसको टच नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जैसे ही मैं इसको टच कर रहा हूँ तब जाकर इफेक्ट दिख रहा है आपको, ठीक है। सो एटलीस्ट दो ऑब्जेक्ट्स का साथ में होना तभी जाकर फोर्स हो सकता है, ठीक है। देन ओनली वी कैन से वेदर फोर्स एग्जिस्ट और नॉट। बाय ऑब्जर्विंग टू ऑब्जेक्ट्स ओनली देन वी विल बी एबल टू से वेदर फोर्स एग्जिस्ट और नॉट। द कैटेगरीज ऑफ फोर्सेस आर, एक हो गया आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस और एक हो गया आपका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या हो जाएंगे भाई साहब, कॉन्टैक्ट में आपका जैसे फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, ओके। व्हाट एल्स, पुश फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है, पुल फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब तक चीजों के साथ आपका कॉन्टैक्ट नहीं होगा ना ही आप उसको पुश कर सकते हैं और ना ही पुल कर सकते हैं, ठीक है। मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सारे आपके कॉन्टैक्ट फोर्सेस हो गए। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बताइए क्या क्या हो जाएगा, ओके। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में क्या क्या आ जाएगा, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा, और बोलो भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स, यस मैग्नेटिक फोर्स, और बोलो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ जाएगा भाई साहब, और एक और होता है जिसको अपन न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, ये एटम्स में होता है। सो एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन अ फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट और दूसरे ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन की वजह से जो फोर्स होता है उसको अपन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड अ फोर्स, ठीक है। ओके, एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, व्हाट विल बी द नेट फोर्स व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर भाई साहब एक ऑब्जेक्ट है कोई और इसमें आप 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, एक और 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो क्या बोल सकते हैं अपन, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन का टोटल फोर्स लग रहा है कि नहीं, ठीक है। सो फोर्सेस अप्लाइड, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखो व्हाट विल बी द नेट फोर्स, मतलब टोटल फोर्स क्या हो जाएगा ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन टू फोर्सेस ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन, फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एट टू वन अनदर। तो अपन ने यहाँ पे क्या किया, 10 न्यूटन और 10 न्यूटन को ऐड कर दिया तो ये हो गया 20 न्यूटन। अगर ऐसा होता कि भाई साहब ये आपका बॉडी है, इस तरफ से 10 न्यूटन है और इस तरफ से 10 न्यूटन है, अब बताओ क्या रिजल्टेंट फोर्स होता, जीरो हो जाता, क्योंकि जीरो हो जाएगा ना भाई साहब। अभी भाई साहब हर्ष चौधरी है, इसको बाबू इस तरफ से ढकेल रहा है और उधर से क्या कहते हैं अपना मिस्टर सावंत भी इधर से ढकेल रहे हैं और दोनों सेम फोर्स से ढकेल रहे हैं, तो क्या इधर भी नहीं जाएगा इधर भी नहीं जाएगा, खींच रहे हैं समझ लो इसको भाई साहब, दोनों एक खींच रहे हैं, दोनों अलग अलग साइड से और सेम फोर्स से खींच रहे, तो भी कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं होगा, सो ये जीरो फोर्स हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है ये, ठीक है। ओके, व्हाट हैपेंस व्हेन टू फोर्सेस एक्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन,
तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। इफ द टू फोर्सेस एक्टिंग, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। अभी बताओ, समझ लो कोई बॉडी है, इस पे इधर से मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर से मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा बोलो? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? 10 न्यूटन, ठीक है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। इस डायरेक्शन में भाई साहब कितना हो गया? 10 न्यूटन का फोर्स, ठीक है, क्लियर है? We know that if two forces act on opposite direction on an object, the net force on the object is the difference between the two forces. If the two teams pull a rope with an equal force, the forces will be in opposite directions and will cancel each other and the rope will not move. अगर भाई साहब स्ट्रेंथ सेम है, दोनों टीम्स का स्ट्रेंथ अगर सेम है, तो वो रोप मूव ही नहीं करेगा किसी डायरेक्शन में भी। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है भाई साहब? चेंज द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है, स्टेट ऑफ मोशन। व्हाट मे बी द कॉन्सिक्वेंस व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड? कॉन्सिक्वेंस मतलब होता है रिजल्ट, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है? व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, द कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकता है भाई साहब? ऐसे सोचो, आप क्रिकेट खेल रहे हो भाई साहब, तो बॉल आई, ठीक है, आपने उसको भाई साहब मारा, तो आपने क्या कर दिया भाई साहब? उसको मोशन को चेंज कर दिया, है ना। वो आ रही थी इधर, आपने उसको उधर मार दिया, तो आपने क्या किया? स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हो बोलो? शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट को चेंज ऑफ मोशन। और तीसरा होगा भाई साहब चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है, ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। ये भाई साहब रेस्ट पे है, मैंने इसको फोर्स लगाया तो मूव किया, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट। चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन, भाई साहब मोशन में था कोई बॉल, समझ लो बॉल इधर आ रही थी, ठीक है, हमने क्या कर दिया? इधर कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपका चेंज इन डायरेक्शन, दिस इज चेंज इन डायरेक्शन। और क्या है? चेंज इन शेप, ठीक है। अभी कोई प्लास्टिक की बॉटल है भाई साहब, उसको अगर हम कुचुर मुचुर कर सकते हो कि नहीं, है ना। तो व्हाट आर यू डूइंग? बाय अप्लाइंग फोर्स यू आर चेंजिंग इट्स शेप, तो चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज और द रिजल्ट्स ऑफ अप्लाइंग फोर्स ऑन अ बॉडी। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ठीक है। हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट? ठीक है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इट मे चेंज इट्स स्पीड, तो स्पीड चेंज हो सकता है। भाई साहब कोई स्पिनर है, वो धीरे से बॉल डाल रहा है, लेकिन जो बैट्समैन है वो जोर से छक्का मार रहा है, उसका जो स्पिनर का बॉल है वो सिर्फ पिच क्रॉस कर रहा है, लेकिन बैट्समैन का जो बैट है वो बॉल को स्टेडियम क्रॉस करवा दे रहा है कि नहीं? ठीक है। सो व्हाट हैज हैपेंड हियर? इट्स स्पीड हैज चेंज्ड। दूसरा, अगर समझ लो फुटबॉल खेल रहे हैं आप, तो गोली जो है जोर से बॉल आ रहा है, गोली उस बॉल को रोक रहा है, ठीक है, कंप्लीट चेंज ऑफ स्पीड हो गया यहाँ पे, ठीक है। इफ द अप्लाइड फोर्स इज इन ऑपोजिट टू द मोशन देन दिस रिजल्ट्स इन अ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो ये भाई साहब आपका ऑपोजिट, मतलब उसका रिजल्ट क्या होगा? डिक्रीज होगा। सो मतलब बहुत जोर से कोई फास्ट बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन पूरा डिफेंसिव खेल रहा है, एकदम डिफेंस में, ठीक है, तो कर दिया एकदम से, तो क्या कर दिया उसने? पूरे बॉल के स्पीड को तोड़ डाला उसने, है ना। तो दैट इज कॉल्ड चेंज इन स्पीड। व्हाट इज मेन बाय चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? अ चेंज इन ईदर द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और इज डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ ड्यू टू फोर्स इज डिस्क्राइब्ड एज अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई साहब आपका चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर आपका डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या स्पीड में चेंज हो रहा है या तीनों में भी चेंज हो रहा है, दोनों में भी, सॉरी, ठीक है, तो आपका भाई साहब चेंज इन स्पीड हो रहा है, ठीक है। चेंज इन स्पीड मतलब ऐसा लिख रहे हैं, देखो डेल्टा मतलब होता है चेंज, चेंज इन डायरेक्शन, ठीक है, और चेंज इन बोथ, तो अपन क्या बोलेंगे भाई साहब? दैट इज कॉल्ड चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। ओके, फोर्स क्या क्या कर सकता है भाई साहब? फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट में रिजल्ट इन चेंज इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। आपने हथौड़ा लिया भाई साहब और एक चौक के ऊपर दे मारा, क्या हो जाएगा? टुकड़े हो जाएंगे उसके। एक कांच के ऊपर दे मारा, क्या हो गया? टुकड़े हो गए उसके भाई साहब। तो आपने क्या कर डाला इसमें? यू हैव चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आपने फोर्स अप्लाई किया भाई साहब, बॉल ऐसे आ रही थी और आपने डायरेक्शन अलग कर दिया, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ मोशन। चेंज इन स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट इज मूविंग, आपने भाई साहब स्पिनर को जोर से मारा या फास्ट बॉलर को टुक कर दिया, डिफेंस खेल दिया पूरा, ठीक है, तो ये क्या कर दिया आपने? चेंज इन स्पीड ऑफ कर दिया, ठीक है। ओके, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, तो ये अगर एक ये चीज बैठी हुई है, मैंने इसको फोर्स दिया तो ये मूव किया, ठीक है, तो दैट इज बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम रेस्ट। सम और ऑल ऑफ दीज इफेक्ट, सब एक साथ भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, एवरीथिंग कैन हैपन ऑल एट वंस, ठीक है, एक साथ भी हो सकते हैं ये। तो ये सारे आपके इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हैं या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फोर्स हैं, ठीक है।
Okay. We know that a force applied on an object causes either a change in its state of motion or its shape. Different types of events are listed. Tell the type of effect in each case. चलिए इसको जरा करने की कोशिश कीजिए. चलिए फटाफट फटाफट. Quick everyone. करते हैं इसको. ठीक है. ओके. अ लंप ऑफ डाउ. डाउ मतलब क्या होता है भाई साहब? आटा. आटा गूंथती है ना मम्मी. ठीक है. तो अ लंप ऑफ डाउ ऑन अ प्लेट, प्रेसिंग इट डाउन विद द हैंड. तो इसका क्या हो रहा है? चेंज इन शेप हो रहा है. ठीक है. तो चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन हो रहा है क्या? नहीं. चेंज इन शेप. यस. ठीक है. अ फोम कुशन प्लेस्ड ऑन अ चेयर ऑन अ बेड, प्रेसिंग विद हैंड और स्टैंडिंग ऑन इट. उसके ऊपर भाई साहब आप खड़े हो गए कुशन के ऊपर या अपना सर रखा उसके ऊपर, तो ये कंप्रेस हो रहा है. तो व्हाट इज हैपनिंग? चेंज इन शेप. इज इट मूविंग? नो. अ रबर बॉल प्लेस्ड ऑन अ टेबल, प्रेसिंग इट डाउन विद अ हैंड. रबर बॉल है, चेंज इन शेप हो जाएगा भाई साहब, पिचक जाएगा वो, है ना. अ बॉल ऑफ कॉटन ऑन अ पीस ऑफ स्पॉन्ज प्लेस्ड ऑन अ टेबल. ठीक है. एक कॉटन बॉल है, अ बॉल ऑफ कॉटन ऑन अ, ठीक है, बाई कीपिंग इट बुक और वेट ओवर इट. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चेंज इन शेप हो जाएगा. स्प्रिंग फिक्स टू द सीट ऑफ अ बाईसाइकिल बाई सिटिंग ऑन द सीट, अगेन चेंज इन शेप हो जाएगा. अ रबर बैंड सस्पेंडेड फ्रॉम अ हुक फिक्स्ड ऑन अ वॉल. तो ये एक रबर बैंड है, इसमें आपने कोई वेट डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा. अ प्लास्टिक और मेटल स्केल प्लेस बिटवीन टू ब्रिक्स. ठीक है. बाय पुटिंग अ वेट एट द सेंटर ऑफ द स्केल. तो एक देखो ऐसा है, ये स्केल को आपने ऐसा रखा है ब्रिक के ऊपर और इसके ऊपर एक वेट रख दिया, तो ये कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा ना, बेंड हो जाएगा, है ना. सो अगेन चेंज इन शेप. ठीक है. सो इसमें भाई साहब सबके सब इसमें यस थे, इसमें सबके सब नो थे. ठीक है. चेंज इन मोशन नहीं था, चेंज इन शेप था. ओके. Reaching the age of adolescence, as we have learned earlier, what is adolescence, people? Adolescence is the stage of puberty. ठीक है. आप जब जवान हो जाते हैं, मतलब when you become sexually reproductive, तो इसको अपन बोलते हैं adolescence. ठीक है. What is the period of adolescence? तो period of adolescence कहाँ से कहाँ तक है भाई साहब? टीन्स जिसको हम बोलते हैं, 13 to 18 या 19 years of age. ठीक है. तो इसका स्टडी क्यों ज़रूरी है? क्योंकि इस टाइम पे आपके बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स एक साथ मैन्युफैक्चर होते हैं. ठीक है. और इसके पहले हार्मोन्स मैन्युफैक्चर नहीं होते हैं. आप देखोगे आपके शेप और फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आपके शरीर के गठन में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं, आपका वॉइस चेंज हो जाएगा. ठीक है. एक छोटे बच्चे से आपका वॉइस एक मैनली या वुमेनली वॉइस हो जाएगा. सो ऑल दीज आर चेंजेस दैट टेक प्लेस साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस और प्यूबर्टी. ठीक है. At what age does the growth in human body become noticeable? ठीक है. Crossing the age of 10 or 11 years, a sudden spurt in growth in human body becomes noticeable. जैसे 10-11 साल की उम्र हम क्रॉस करते हैं, आप देखोगे कि फटाक से कोई लंबा हो गया अचानक से, है ना. दूर दराज के रिश्तेदार जब मिलने आते हैं तो बोलते अरे ये तो टुन्नू सा था, अभी कितना लंबा हो गया ये, अचानक ही बोलोगे, है ना. क्योंकि भाई वो होता ही है, 10-11 साल की उम्र में अचानक से सारे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपके बॉडी में बहुत रैंडमली चेंजेस आते हैं. ठीक है. क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 years, a sudden spurt in growth or in human body becomes noticeable. What is puberty? Puberty is the beginning of adolescence age when human body undergoes several changes. तो adolescence age की शुरुआत है जब ह्यूमन बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं. ठीक है. काफ़ी सारे चेंजेस. ओके. What indicates that, और ये चेंजेस सिर्फ फिजिकल नहीं है, इमोशनल भी हैं. ठीक है. अक्सर छोटे बच्चों का कंप्लेंट लेकर पेरेंट्स नहीं आते हैं. ठीक है. बड़े बच्चों का लेकर आते हैं, ये तो बात सुनता ही नहीं है, ये हर्ष मेरी बात ही नहीं सुन रहा है, पहले कितना अच्छा था, सबका बात सुनता था, अभी देखो सबसे झगड़ा फसाद कर रहा है, अभी देखो क्या उसको क्या बोलते हैं, उल्टा जवाब देता है, हम इसको कुछ बोलने जाते हैं तो उल्टा जवाब देता है. ऐसा अक्सर सुनेंगे आप. और ये सिर्फ हर्ष की कहानी नहीं है, हर उस बच्चे की कहानी है जो आपकी उम्र की हो. ठीक है. और ये होता क्यों है? क्योंकि आपके अंदर अभी एक हार्मोन जनरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से आपका मेंटल एवोल्यूशन भी हो रहा है. वो सारी चीज़ें जो आप समझ सोच या जान नहीं पा रहे थे, अभी आप कर पा रहे हो. ठीक है. जिसके वजह से आपके पेरेंट्स के साथ एक क्लैश होने लगता है. नाउ ये क्लैश जो है, ना ही पेरेंट्स आपके दुश्मन हैं और ना ही आप उनके, लेकिन ये थॉट्स का क्लैश है, ये होगा ही. ठीक है. ये होगा, ये और ये सबके लिए होगा, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी. एवरीबडी विल गो थ्रू दिस फेज. ठीक है. दैट देयर विल बी अ क्लैश विद द पेरेंट्स, क्योंकि अब वो बच्चे नहीं रहे और पेरेंट्स भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं. ठीक है. क्योंकि छोटे बच्चे से उनको देखा है और अचानक में अभी ये उल्टा जवाब देने लगा है, मतलब अभी ये बैकफायर कर रहा है. सो दिस इज समथिंग विच विल हैपन एट एवरी होम
अमंगस्ट ऑल पेरेंट्स एंड ऑल किड्स ये होगा ही, ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे आपके हार्मोन्स एक्टिवेट हो रहे हैं, इस टाइम पे आप भाई साहब डेवलप हो रहे हैं, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एज वेल, ठीक है, मेंटली भी आप डेवलप हो रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो आप जानने में सक्षम नहीं थे, अभी आप जानने में, करने में और उसको विस्तार करने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है, यू बिकम केपेबल। ओके, व्हाट इंडिकेट्स दैट अ चाइल्ड इज बिकमिंग एन एडल्ट? द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी इंडिकेट दैट अ चाइल्ड इज बिकमिंग एन एडल्ट, ठीक है, तो एक चाइल्ड भाई साहब एडल्ट होने लगा है। डू द बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगो सेम फिजिकल चेंज? नो, ठीक है, अंडरगो डिफरेंट फिजिकल चेंजेस, तो अलग अलग फिजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस बिकॉज इट इज अ सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म इन ह्यूमंस में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, मेल्स और फीमेल्स अलग होते हैं। ऐसे बहुत सारी स्पीशीज हैं जिनमें सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म एग्जिस्ट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म नहीं है, ठीक है, अमोइबा में सब यूनिसेल्युलर ही है, सो इट डजंट हैव सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है मेल्स एंड फीमेल्स अलग है, ठीक है। ओके, व्हाई डू मेनी यंग पीपल गेट एक्ने ड्यूरिंग एडोलेसेंस? एक्ने मतलब क्या होता है भाई साहब? आपका स्वेट ग्लैंड्स, ये जो मुहासे निकलते हैं, ठीक है, आपके गालों पे जो मुहासे निकलते हैं इसको हम एक्ने बोलते हैं, ठीक है। व्हाई डू यू सी दिस? क्योंकि आपके देखो ये आपका स्किन है, ठीक है, इस स्किन के नीचे होते हैं सेबेशियस ग्लैंड्स, और ये सेबेशियस ग्लैंड्स बेसिकली ऑयल सिक्रीट करते हैं। क्यों सिक्रीट करते हैं मालूम है? व्हाई ऑयल क्यों सिक्रीट करेंगे? ओके, तो देखो ऑयल क्यों सिक्रीट होता है हमारे स्किन में? हमारे स्किन में ऑयल इसलिए सिक्रीट होता है क्योंकि अगर आपने एक बीकर लिया समझो, और इसमें ऑयल और वाटर एक साथ डाला, आप देखोगे ऑयल ऊपर आ जाएगा और वाटर नीचे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी लेस होती है। क्लियर है? ओके, अभी आपके स्किन से ये ऑयल इसलिए जनरेट होता है क्योंकि आपके स्किन से कंटिन्यूसली पसीना आता रहता है, और अगर सारा पानी जो है तो बाहर चला जाएगा पसीने के माफिक, तो आप डिहाइड्रेटेड हो जाएंगे, और डिहाइड्रेटेड इंसान कोलैप्स कर सकता है। अगर बॉडी में पानी की कमी हो जाए तो द पर्सन कैन कोलैप्स, ठीक है। तो ये जो सेबेशियस ग्लैंड्स हैं ये कंटिन्यूसली ऑयल सिक्रीट करते हैं ताकि आपके स्किन के ऊपरी सतह पे पानी ऑयल रहे और नीचे पे पानी रहे, ताकि ज़्यादा इवेपोरेशन ना हो, आपके बॉडी से वाटर लॉस ज़्यादा ना हो, ठीक है। जब भी आप प्यूबर्टी के एज में आते हैं तो ये ज़्यादा सिक्रीट करते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सेबेशियस ग्लैंड्स इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज होने लगता है। इसीलिए बच्चों को ज़्यादा करके गर्मी के मौसम में सन के नीचे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उनके सेबेशियस ग्लैंड्स उतने ज़्यादा ऑयल सिक्रीट नहीं करते हैं, जिसके वजह से उनके बॉडी से पानी का इवेपोरेशन होना बहुत ज़्यादा होता है, मतलब उतने ज़्यादा सेबेशियस ग्लैंड्स नहीं, और इसके वजह से वो फेंट कर सकते हैं, कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सेबेशियस ग्लैंड से हमारा ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा होने लगता है, जिसके वजह से पिंपल्स आते हैं, ठीक है, चेहरे पे पिंपल्स आते हैं, और ये प्यूबर्टी का लक्षण है, ठीक है। ओके, सो विच गिव्स राइज टू एक्ने इन सब में नहीं होता है, किसी किसी में होता है, लेकिन ये सिर्फ एक सिंपल साइंस है। उस एज को आप क्रॉस कर जाएंगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे। ज़्यादा लोग कॉस्मेटिक्स वगैरह लगाने जाते हैं लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। द मोमेंट यू क्रॉस दैट प्यूबर्टी एज थिंग्स विल सेटल डाउन ऑन देयर ओन, ठीक है, क्लियर है। तो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, आपने कभी देखा रहेगा वो ऐड आता है ना, ओ सर्दियों में आपकी त्वचा रूखी हो गई है, ये क्रीम लगाइए, है ना। ये रूखी क्यों हो जाती है? आप देखोगे जब यहाँ तो सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है, अगर आप नॉर्थ में जाएंगे तो एक्चुअली ना आप यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं अपने स्किन में, ठीक है, इतना ज़्यादा सूखा हो जाता है वो, आपके स्किन में आप ऐसे डायग्राम्स बना सकते हैं। यू कैन, अगर आप थोड़ा सा ऐसा करेंगे तो पूरा सफ़ेद दिखेगा, ऐसा इतना ड्राई हो जाता है आपका स्किन। क्यों? क्योंकि जब ठंडी का मौसम होता है तो वाटर लॉस कम हो जाता है वैसा बॉडी से, तो हमारे बॉडी में बड़ा साइंटिफिक अडेप्टेशन होता है। तो हमारा बॉडी बोलता है कि भाई क्यों हम ग्लैंड से ऑयल सिक्रीट करें, क्यों हम अपना एनर्जी वेस्ट करें, तो ऑयल सिक्रीशन कम हो जाता है अपने आप। इन सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल सिक्रीशन अपने आप कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी त्वचा रूखी हो जाती है। वही त्वचा जो गर्मियों में स्लिपरी होती है, वही त्वचा भाई साहब आपकी रूखी हो जाती है सर्दियों में, क्योंकि ऑयल सिक्रीशन कम हो जाता है। भाई इतना वाटर लॉस जब होगा नहीं तो वाई विल द बॉडी वेस्ट इट्स एनर्जी इन जनरेटिंग ऑयल थ्रू सेबेशियस ग्लैंड्स, एंड दैट्स व्हेन your skin becomes a little coarse, ठीक है। Okay, what is the most important change during puberty? Marks of puberty in boy is that they become capable of the process of reproduction. Puberty मतलब क्या होता है?
हम सक्षम हो जाते हैं, वी आर केपेबल नाउ ऑफ प्रोड्यूसिंग आवर ओन काइंड्स, ठीक है, हम अपने काइंड्स को प्रोड्यूस करने में अभी सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। When does a child gain maximum height? There is a sudden increase in height during puberty. Puberty के टाइम पे फटाक से भाई साहब हाइट बढ़ता है, ठीक है। और अक्सर आप रिश्तेदार या जो लोग बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहे हैं उनको बोलते हुए सुनोगे, अरे यार ये तो टिन्नू सा था, अभी इतना कैसे बड़ा हो गया भाई साहब, क्योंकि ये प्यूबर्टी में होता है, ठीक है। बट द टाइम प्यूबर्टी एंड्स अ चाइल्ड बिकम्स एडल्ट एंड अचीव्स 100% ऑफ हिज, तो आपका लगभग 20 साल तक ही आपका हाइट बढ़ता है, उसके बाद नहीं बढ़ता है, ठीक है। आप उसी हाइट के रह जाते हैं। जैसे मेरा हाइट और नहीं बढ़ेगा, किसी 25 साल की उम्र का हाइट नहीं बढ़ेगा, किसी 21-22 साल के उम्र के इंसान का हाइट और नहीं बढ़ने वाला है, इट्स गोइंग टू स्टॉप। सो वॉट एवर हाइट हैज़ बीन अटेन्ड ड्यूरिंग दैट टाइम 19-20 मैक्सिमम है, उसके ऊपर नहीं जाएगा हाइट। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है। वाई डू बॉयज हैव अ होर्स वॉइस एट प्यूबर्टी? तो बॉयज के अंदर जो वॉइस का जो बॉक्स है, ठीक है, वो वैसा स्ट्रेच्ड आउट हो जाता है, ठीक है। सो वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो, ठीक है। दिस ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एज अ प्रोट्रूडिंग पार्ट। आपको दिखेगा भाई साहब, ये जैसे 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 प्यूबर्टी आएगी वैसे वैसे आपको ये गले का ये चीज़ बाहर दिखेगा आपको, ठीक है, ये बाहर आने लगेगा थोड़ा सा। इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं हम, ठीक है। बॉयज में ये दिखता है ज़्यादा करके। वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। The growing voice box in boys can be seen as a protruding part of throat called Adam's apple. This leads to the voice becoming hoarse. आपका voice जो है तो थोड़ा सा गंभीर हो जाता है ना, एक बॉयश वॉइस से अभी आपका एक मेल वॉइस की तरह आ जाता है, ठीक है। Why do some adolescents feel insecure? अभी ये मेंटल चेंज है, ठीक है, ये मेंटल चेंज है। Adolescents become more independent and self-conscious. अभी आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे कोई बच्चा है भाई साहब, वो ठीक से चल नहीं पा रहा है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, है ना। अभी तो उसने चलना सीखा है, धड़ाम धुड़ुम गिर रहा है भाई साहब, बच्चों में आप देखेंगे, है ना। सो दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल एवरीथिंग। बच्चे को खिलाना पड़ता है, वो खुद से नहीं खा पाता है, ठीक है, और खुद से खाएगा भी तो भाई साहब टीवी देखते देखते 2 घंटे तक खाएगा, है ना, ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ों में डायरेक्शन देना पड़ता है। बच्चे उतने मैच्योर नहीं होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्यूबर्टी में एंटर करते हैं आपका इंटेलिजेंस लेवल बढ़ने लगता है ऑटोमेटिकली, और बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। तो ये अपने आप को आपको अभी खिलाना पड़ता है, हो सकता है प्यार से कोई खिला रहा हो आपको घर में, लेकिन आप अपने से खा सकते हैं, आप अपने से नहा सकते हैं, आप अपने से शौच कर सकते हैं, आप अपने से अपने कपड़े तक धो सकते हैं, राइट। यू आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस थिंग्स। आप अपने से अपनी नोटबुक निकाल कर नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों के क्लास में चले जाओ, आए नोटबुक निकालो, नोटबुक निकाल। कभी कभी टीचर्स को किंडरगार्टन में उनके बैग से भाई साहब नोटबुक निकाल कर, पेंसिल निकाल कर उनके हाथों को पकड़ के भाई साहब लिखाना पड़ता है। यू हैव सीन दिस, राइट। इट हैज़ हैपेंड टू यू एज वेल। आप जब बच्चे थे तब आपके साथ भी वैसा ही होता, लेकिन धीरे धीरे प्यूबर्टी के एज में आप सारे चीज़ों को अपने आप हैंडल करने लगते हैं, ठीक है। एंड दिस गिव्स यू अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस, और इसी में आपका क्लैश होता है पेरेंट्स के साथ। वो बच्चा था भाई साहब, वो सब कुछ हमारे कहने पे कर रहा था, आज अपने ही कहने पे अपने हिसाब से सब कुछ कर रहा है ना। तो ये क्लैश चालू हो जाता है, ओके। और ये घर घर की कहानी है। एडोलेसेंट्स बिकम मोर इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ कॉन्शियस, दे स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, ठीक है। तो ये सोचने ज़्यादा लगते हैं, बट समटाइम्स दे आर अनेबल टू एडजस्ट द चेंजेस इन आवर बॉडी एंड माइंड, हैंस दे फील इनसिक्योर। तो कभी कभी ये इनसिक्योर फील होने लगते हैं, यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यार ये क्या, मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो ऐसा समझो कि आप एक रास्ते से जा रहे थे और वहाँ पे एक स्ट्रीम था, ठीक है, एक छोटा सा नाला था नाला मतलब जिसमें स्वच्छ पानी है, और उसमें आप बड़े आराम से चल के जा रहे थे, है ना। यू नो हाउ टू क्रॉस दैट। थोड़ा सा ही भाई साहब 10 फीट का ऐसा थोड़ा सा पानी आ रहा था ऐसे, और उसको आप रोज़ चल के जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक में अगर उसमें बाढ़ आ जाए, बहुत ज़्यादा पानी आ जाए बारिश में, तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है ना। यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। इफ़ नाउ यू गो इनसाइड देन यू माइट गेट लॉस्ट, है ना। तो इसी तरह से आपके बॉडी में भी ये जो हार्मोन्स थे ये पहले नहीं थे, है ना, थे लेकिन एक्टिव नहीं थे। जैसे ही आप प्यूबर्टी में एंटर करते हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, और आपके शरीर में हार्मोन्स की एक बाढ़ सी आ जाती है ना, जो आपके फिजिकल और मेंटल में काफ़ी सारे चेंजेस लाते हैं ऑल ऑफ अ सडन। और इन चेंजेस के साथ हम अक्सर कोप अप नहीं कर पाते। इसीलिए आप देखोगे ज़्यादा करके बुरी आदतें जो होती हैं इस एज में लगती हैं। ड्रग्स की आदत, अल्कोहल की आदत, ठीक है, जितनी भी बुरी आदतें हैं, गुंडागर्दी करने की आदत, गाली गलौज करने की आदत, ठीक है। आपकी उम्र में लोग ज़्यादा गाली बकते हैं, ना कि हमारी उम्र में। हम गाली उली बक के अभी बैठ गए चुपचाप, है ना।
ऐसा नहीं है गाली बकने के लिए कुछ भी, मतलब बैड हैबिट्स जो है इस टाइम पे आपके अंदर पीयर इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा, दूसरों को देखकर प्रभावित होने का आपके अंदर ज़्यादा होगा। अरे वाह क्या गाड़ी चलाता है और क्या स्टंट मार रहा है रे, अरे वाह क्या डांस कर रहा है रे, ये सब चीज़ें आपके अंदर ज़्यादा होंगी, है ना, नॉर्मली होंगी ही, क्योंकि आपका भी मतलब ऐसा टेंडर एज है कि हार्मोन्स आपको एक्टिवेट कर रहे हैं आपके दिमाग को, और जो भी आपके दिमाग के आजू बाजू घट रहा है उसको आप फट से कैच कर रहे हैं। ठीक है, हमारे लिए अरे क्या बाइक चला रहा है ना, ठीक है जा, ऐसा ही हो गया है। वी हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, आप इन चीज़ों को नए तरीके से देख रहे हैं, पूरी दुनिया को ही आप एक नए तरीके से देख रहे हैं, इसीलिए इनसिक्योरिटी होती है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमेशा आप किसी एक ऐसे इंसान को रखें, हमेशा किसी एक ऐसे इंसान को अपने जीवन में रखिए जिसको आप अप्रोच कर सके। ठीक है, अगर किसी चीज़ को लेकर आप बहुत इनसिक्योर फील करते हैं, ठीक है, जैसे देखो मुझे अगर किसी ने गाली दे दी है ना, तो मैं इग्नोर कर दूंगा, मेरे एज के लोग इग्नोर कर देंगे या तो थोड़ा बोल के फिर चले जाएंगे, अरे पागल है छोड़ो ऐसा ऐसा। लेकिन अगर आपको किसी ने गाली दे दी आप बहुत इमोशनल हो जाएंगे, मारा मारी पे उतर आएंगे, है ना, बिकॉज दिस इज़ योर एज व्हेन यू आर वेरी सेंसिटिव, आप बहुत सेंसिटिव होते हैं इस टाइम पे, और ये सबकी कहानी है, एवरीबॉडी। ठीक है, इसीलिए कोई भी चीज़ आपको जितना इफेक्ट इस एज में करेगी और किसी भी एज में उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगी, इट्स गोइंग टू सिवियरली इम्पैक्ट यू। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में किसी एक इंसान को ऐसे रखें जिसके साथ आप जिसका गाइडेंस ले सकें। ठीक है, वो कोई भी हो सकता है, आपके घर में आपके माता पिता तो हो ही सकते हैं, आपके बड़े कोई हो सकते हैं, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी हो सकता है जिसके साथ आप अपने ऐसे संबंध बनाएं कि आप फ्रीली चीज़ों को डिस्कस कर सकें। ठीक है, क्योंकि ये ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम सब गुजरे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम मतलब देखो ज़्यादा करके पेरेंट्स और किड्स में ऐसा रिलेशनशिप नहीं होता है कि खुल के बात हो सके। ठीक है, लेकिन गुजरे सभी हैं इस दौर से। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका एक साइंटिफिक एवोल्यूशन है, ये साइंस आपके साथ करेगा ही, है ना, ये इसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इसमें आप बहक ना जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप हमेशा किसी एक को अपने जीवन में रखें जिसके साथ आप डिस्कस कर सकें, जिसके साथ आप खुल के बात कर सकें। चीज़ों को अपने अंदर दबाए रखेंगे तो हो सकता है आप गलत डायरेक्शन में चले जाएं, इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी। ठीक है, सो बिकॉज आपका साथ ही साथ मतलब फिजिकल और मेंटल एवोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, ओके, what are the changes seen in girls at the time of puberty? The various changes that occur at the time of puberty are hair growth in the armpits and the pubic region। तो हमारे armpits में, ठीक है, मतलब हमारे हाथों के नीचे armpits में hair growth होता है, and in the pubic region मतलब private parts में development of mammary glands और breasts। ठीक है, ये आपके गर्ल्स में होता है। onset of menstruation cycle due to production of egg और ova। तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का जो पीरियोडिक साइकिल होता है लड़कियों में ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इट्स फॉर एवरी 4 और 5 डेज इन अ मंथ, और ये मतलब एक हेल्दी प्रोसेस है। अक्सर लोग इसको बोलते हैं अरे यार ये मतलब अपवित्र हो जाना, लेकिन मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा प्रोसेस है, बिकॉज आप एज अ लेडीज़ कभी भी डॉक्टर के पास जाएंगे ना तो वो पहले आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आपके पीरियड्स बराबर हो रहे हैं क्या, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बराबर हो रहा है क्या, क्योंकि आपके पीरियड में अगर फ्लक्चुएशन है तो वो हो सकता है आपके किसी हार्मोन के नॉन डेवलपमेंट से जुड़ा हो, और ताबड़तोड़ उसका इलाज किया जा सकता है। मेल्स में ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। बहुत ही बार ऐसा देखा गया है कि किसी के हार्ट में बहुत बड़ा ब्लॉकेज जब मरने को है तब जाकर पता चल रहा है। ठीक है, मेल्स में बॉडी के अंदर अच्छा खासा इंसान दिख रहा है, लेकिन बॉडी के अंदर क्या चल रहा है कुछ मालूम नहीं है। अल्टीमेटली जब एक बहुत बड़ा कुछ होगा तब पता चल रहा है। सो दीज आर थिंग्स दैट हैपन। आर बी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, फीमेल्स में ये एडवांटेज है, फीमेल्स में एडवांटेज है और ये अच्छी चीज़ है। दिस इज बेसिकली नॉट अ कर्स, इट्स अ बून। ठीक है, फॉर मी, मैं अगर देखूँ साइंस की नज़रों में तो ये एक बून है उनके ऊपर, मतलब एक आशीर्वाद समझ लो, प्रकृति का आशीर्वाद है कि उनका। और इसीलिए आप देखोगे कि अगर मतलब पीरियड्स में इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं तो डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो उसका ट्रीटमेंट फटाक से हो जाएगा। लेकिन आप भाई साहब, आपको सर्दी खांसी नहीं है, लूज मोशन नहीं है, कुछ नहीं है, आप समझ रहे हो आपके भले चंगे हैं, लेकिन आपके अंदर भी बहुत सारा कुछ ऐसा चल सकता है और आपको लगता है कि कुछ नहीं चल रहा है। ज़्यादा करके मेल्स में ये होता है। ठीक है, मेल्स डू नॉट हैव एनी इंडिकेटर्स, फीमेल्स हैव दिस इंडिकेटर। ठीक है,
इंक्रीज ऑयल सिक्रीशन इन द स्किन, ये तो भाई साहब मेल्स में भी होता है, जैसे मैंने बताया पिंपल्स आते हैं आपको, ठीक है, ऑयल सिक्रीशन आपका बढ़ जाता है, सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल सिक्रीशन बढ़ जाता है। व्हाट आर हॉर्मोन्स? हॉर्मोन्स आर केमिकल सब्सटेंसेस सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हमारे पूरे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है एंड दे कंटिन्यूअसली सिक्रीट हॉर्मोन्स। राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ वन मेल एंड फीमेल सेक्स हार्मोन। मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरोन। तो मेल के सेक्स हार्मोन को अपन क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। और फीमेल्स में दो हार्मोन्स होते हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। तो फीमेल सेक्स हार्मोन्स इज एस्ट्रोजन विच प्रोड्यूसेस ओवरीज, इट प्रोड्यूसेस सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक फीमेल। तो आपके दो हार्मोन्स है बेसिकली, मेल्स में जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं भाई साहब टेस्टोस्टेरोन, और फीमेल्स में जो हार्मोन्स है वो है आपके एस्ट्रोजन जिससे ओवरीज प्रोड्यूस होती है, एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन। ये दो हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके, ठीक है, आज के लिए यहाँ पे ही हम समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। ठीक है, जा सकते हैं।